بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 13 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 56۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل انی نحیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، انی نحیت ان اعبد، کہ اگر کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے، مجھے اس چیز سے روکا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، تدعون، میں اس کی طرف آؤں، من دون اللہ، جن کی تم اللہ رب العزت کے سوا تم اللہ کو ان کو پکارتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ان کو کہتے ہیں کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا کہ آپ اس وقت ان کی ہر بات کا یہ جواب دیجئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہ کہا، بلکہ ہر بات کا جواب اللہ رب العزت نے ان سے دلوایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو ہر بات کا جواب سکھایا۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل لا اتبع اہواءکم، کہ اگر تو میں، قل کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ قد دللت اذن، اگر تو میں نے ایسا کر دیا، اور کیونکہ تم اس حالت میں ہو کہ تم بھٹکے ہوئے ہو، قد ضللت، کہ تم بھٹکے ہوئے ہو، اذن وما انا من المہتدین۔ تو اللہ رب العزت آگے کیا کہتے ہیں کہ آپ ان سے کیا کہہ دیجئے، اور ان سے کہہ دیجئے کہ تم بے راہ ہو گئے ہو، اپنے راہ راست سے ہٹ گئے ہو، اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا اگر میں نے ایسا کیا۔ وما انا، اور اگر میں نے ایسا کیا اور میں نہیں رہوں گا انا من المہتدین، اور میں راہ راست پر چلنے والے، ہدایت والے لوگوں پر نہیں رہوں گا، اگر میں نے تمہاری خواہشات کو سن لیا اور تمہارے ساتھ چل پڑا اور ان لوگوں کو پکار لیا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو۔ کفار مکہ بڑے سمجھدار سمجھتے تھے خود کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیجئے، ہماری جو شریک ہیں، یا جو ہمارے مولا جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ایک سال آپ ان کی عبادت کر لیجئے، اور پھر ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، تو پھر حساب برابر ہو جائے گا۔ دین یہ تو نہیں، دین تو عقیدہ ہے جو پختہ ہے، جو ہر حال میں ایک ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ میں ہرگز ان کو نہیں پکاروں گا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مشقت، کوئی مشکل آ جاتی، وہ پھر آ جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تم کون سے رب کو پکار رہے ہو کہ تمہیں اس مشکل سے بھی نہیں نکال رہا، تم آؤ ہمارے بتوں کی طرف، دیکھو کیسے تمہیں دور کرتا ہے ان ساری مشکلات سے۔ بالکل آج ایسے ہی جسے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا، آؤ اس پیر کے پاس چلتے ہیں، آؤ فلاں جگہ سے تعویذ دے دیتے ہیں، پھر دیکھو یہ سارے معاملات کیسے دور ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سارے معاملات ہمیں شیطان کے بہکاووں میں لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں مشکلات سے نجات دلا سکے۔ تو اگر تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا، ایسے ہی اتباع کرنی شروع کر دی، تو پھر ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، جو ہدایت سے بھٹک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دیتے ہیں
कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुल कह दीजिए, इन्नी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, बय्यिनतिन मिन रब्बी वकज़्ज़बतुम बिह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि मेरे पास तो एक दलील है मेरे रब की तरफ से, इन्नी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, मेरे रब की तरफ से एक दलील है, अल्लाह ने मेरी तरफ से मुझे वो दलील, वो आयतें भेज दी हैं, फकज़्ज़बतुम बिह, और तुम तो उसको झुठलाने वाले हो, तुम उसको झुठला रहे हो और तुम उसकी तकज़ीब कर रहे हो। कज़, जो किज़्ब कर रहे हो, झुठला रहे हो उसको। मा इंदी मा तस्तअजिलून बिह, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं मा इंदी मा तस्तअजिलून बिह, मेरे पास वो नहीं है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। किसके लिए जल्दी मचा रहे हैं वो दर हकीकत जल्दी अजाब लाने के लिए के बार बार कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब लेकर क्यों नहीं आ जाते, चाहो उस अजाब को ले आओ जिसके लिए तुम हमें बार बार डराते हो। तो अल्लाह ताला उनको कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इनको कह दीजिए कि मेरे पास वो नहीं है जिसके लिए तुम जल्दी मचाते हो। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, और क्या आगे इरशाद होता है, हुक्म किसी का नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि अजाब देने का हुक्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही है और उसी का हुक्म चलता है, मेरे पास ये नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से अल्फाज में फरमा दिया कि मैं अजाब देने पर कादिर नहीं हूँ, अजाब देने पर अल्लाह कादिर है। इसके बारे में एक हदीस शरीफ आती है जिसमें हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर जब उन लोगों ने बरसाए थे, उन्होंने गिराए थे, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए और उन्होंने शरारती बच्चे उनके पीछे लगा दिए, उनको पत्थरों से उनको लहू लुहान कर दिया, और पहाड़ों का फरिश्ता उनके पास आया कि आप अगर हमें हुक्म दीजिए तो हम इन लोगों को इसके अंदर इस पहाड़ों के दरमियान में पीस कर खत्म कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों से अल्लाह की इबादत करने वाला पैदा फरमाएगा जो इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। और फिर ऐसा हुआ। इसमें ये बात नहीं है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह ताला उन पर अजाब ना भेजता, अगर वो अल्लाह से मांगते तो वो अजाब आ भी जाता। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुदरत हासिल न थी कि वो खुद किसी कौम पर किसी किसी को अजाब पहुंचा सकते। वो अजाब अल्लाह ताला की ही तरफ से आता है और अल्लाह ताला की बात ना सुनने पर आता। तो यहाँ पर उनसे उनकी रजा, उनकी रजामंदी पूछी गई कि अगर तो आप चाहें तो हम इनको निस्तो नाबूद कर दें। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही नहीं कहा गया कि वो रहमतुल लिल आलमीन, कि वो रहमत है तमाम आलमीन के लिए, तमाम जहानों के लिए। जहानों से मुराद सिर्फ और सिर्फ ये जहान नहीं, उसमें सारे के सारे जहान शामिल हैं। अगली आयत में इरशाद होता, अगली आयत के अगले हिस्से में इरशाद होता है, यक़ुस्सुल हक़्क़ व हुवा खैरुल फ़ासिलीन। इरशाद होता है कि अल्लाह ताला वाकई बात को बतला देता है, यक़ुस्सु बयान कर देता है, हक को, सच को, व हुवा खैरुल फ़ासिलीन, और सबसे अच्छा फैसला करने वाला वही है। अल्लाह ताला ही बेहतरीन फैसला करने वाला है हर मामले में, हर बात में। आगे मजीद अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं, कुल लौ अन्न इंदी मा तस्तअजिलूना बिही लक़ुदियल अम्रु बैनी व बैनकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास वो चीज होती, यानी कि वो अजाब होता, मा तस्तअजिलूना, जिसको मांगते हो तुम, जल्दी मचाते हो कि मैं वो ले आऊं, बिही लक़ुदियल अम्रु बैनी व बैनकुम, तो मैं क्या करता, अगर वो मेरे पास होती तो तुम्हारा बाहमी किस्सा, तुम्हारा जो किस्सा है, ये सारा का सारा जो मामला है वो तमाम हो चुका होता मेरे और तुम्हारे दरमियान में।
वो सारा का सारा के मामला तय हो चुका होता। वल्लाहु अअलमु बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला बेहतर जानता है, खूब जानता है, ज्यादा जानता है जालिमों को। अल्लाह ताला जालिमों को ज्यादा बेहतर जानता है। आगे देखते हैं आयत के अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, वइंदहु मफातिहुल गैबी। मफातिहुल गैबी क्या है? कुंजियां हैं गैब की। अब मफातिहुल गैबी जो पांच हैं वो कौन कौन सी हैं? वो पांच कुंजियां मफातिहुल गैबी, पांच कुंजियां कौन कौन सी हैं उनको हम लोग देखते हैं कि ये पांच कुंजियां, ये पांच चाबियां कौन कौन सी हैं। पांच हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है, एक सबसे पहले क़यामत का इल्म। सबसे पहला क्या है जी? क़यामत का इल्म। दूसरा है जी, दूसरा है जो गैब है वो क्या है? गैब एक है बारिश का नज़ूल, ये भी गैब की बात है। और अल्लाह के पास हैं ये गैब की कुंजियां, बारिश का नज़ूल, और माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है वो भी गैब का इल्म है। रहम मादर यानी कि माँ के रहम के अंदर, माँ की ओवरी के अंदर, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है वो इल्म। तीसरी ये बात हो गई। और आइंदा कल पेश आने वाले वाकयात जो कल होगा, कल नेक्स्ट फ्यूचर जो कल होगी वो भी वो भी एक गैब के इल्म में आ गया। उसके बाद जो थर्ड जो फिफ्थ लास्ट जो चीज है, वो लास्ट चीज क्या है? मौत, डेथ। ये पांच कुंजियां हैं, चाबियां हैं गैब की। ये पांच चाबियां हैं गैब की। वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु, कि अल्लाह ताला के पास ही ये सारी की सारी पांच कुंजियां, पांच चाबियां हैं। किसकी? गैब की। ला यअलमुहा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आगे क्या, कि इनको कोई नहीं जानता। इल्ला हुआ, हुआ है किसकी तरफ? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ, कि मगर वही अल्लाह है जो इसको जानता है। वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, वल बहर, और वही जानता है जो कुछ भी खुशकी में है और जो कुछ भी समंदर यानी कि पानी के अंदर है, वो सबको जानता है। खुशकी के अंदर चीजों को भी और जो कुछ भी दरियाओं में है वो सबसे वाकिफ है। अगली हिस्से में क्या इरशाद होता है? वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन, कोई भी पत्ता नहीं गिरता, मिन वरक़तिन, कोई पत्ता नहीं गिरता, इल्ला यअलमुहा, कि जो उसके इल्म में ना हो, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म में ना हो। वो कोई भी ऐसा पत्ता नहीं है जो गिरता हो वो उसके इल्म में ना हो। सारा का सारा इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। हाँ तरफ है वरक़ा यानी कि पत्ते की तरफ। वला हब्बतिन, और ना ही कोई हब्बतिन, ना ही कोई बाली, ना ही कोई बीज, ना ही कोई दाना, फी ज़ुलुमातिल अर्द, जो कि जमीन के अंधेरों के अंदर है। अल्लाह ताला उस जमीन के अंधेरों के अंदर जो एक दाना मौजूद है उससे भी वाकिफ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला एक एक चीज को वाज़ेह तौर पर खोल खोल कर बयान करते हैं कि मेरी ताकत कहाँ कहाँ है, मेरा इल्म कहाँ कहाँ है। और फिर अगर आप और मैं ये समझते हैं कि आयत वो बड़ी वाज़ेह और बड़ी कामिल आयत है इस मामले में कि अल्लाह ताला अपना इल्म बता रही हैं कि मेरा इल्म कहाँ कहाँ पर मौजूद है। फिर अगर आप और मैं ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जमीन पर हर जगह मौजूद है, तो अल्लाह ताला अपना इल्म बता रहे हैं कि ये सारा मेरा मेरा इल्म है। फी ज़ुलुमातिल अर्द, ये दाना जो जमीन के अंधेरों में मौजूद है वो भी मेरे इल्म में है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमाते हैं, और ना कोई तर और ना कोई खुश्क चीज गिरती है मगर ये सब किताब मुबीन में लिखा हुआ है। ये सब किताब मुबीन में है। इल्ला फी किताब मुबीन, किताब मुबीन जो है इससे क्या मुराद है? किताब मुबीन से मुराद
क्या है कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में इसको लिख रखा है। ये सब चीजें लोहे महफूज में हैं। अब इससे मुराद ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने ये सब चीजें लोहे महफूज में लिख रखी हैं, जो जो भी मामला जिस जिस वक्त होना है, ये सब अल्लाह ताला के इल्म में पहले से ही है। अल्लाह ताला इनसे पहले से ही वाकिफ है कि ये सब कुछ होना है। किताब मुबीन, लोहे महफूज, वहां पर सब कुछ दर्ज है। अल्लाह ताला के पास सब कुछ इल्म है, इन सब चीजों का, सब बातों का वो सब जानता है। यहां से लिखने की अहमियत को समझिए कि लिखना कितना अहम और कितना जरूरी है। आगे चलते हैं कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। वहुवल्लज़ी, अच्छा ये इस आयत को भेजने, इस आयत को नाजिल करने का मकसद क्या था? क्योंकि जब जब कुफार मक्का ये चाहते थे कि उन पर अजाब क्यों नहीं आ रहा और कब आएगा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब बयान करने का मकसद ये था कि इस सब से मैं वाकिफ नहीं हूँ, बल्कि ये सारी की सारी कुंजियां गैब की ये सारी बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म में है, मेरे इल्म में नहीं है। फिर आज जो आप किसी के पास हिसाब किताब करवाने जाते हैं ये सोच करके चोरी किसने की, हिसाब करके बताइए, तो क्या आप इतना बड़ा शिर्क नहीं करते हैं? तो अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि मेरे पास ये गैब की कुंजियां नहीं हैं आज सिवाय अल्लाह के, तो सोचिए कि हम किन गुमराहियों में भटक रहे हैं, हम किन तावीज़ात के पीछे पड़ गए हैं। ये आयत मुकम्मल और कामिल है हमें हर हर उस बात का जवाब देने के लिए जो हमें, जो लोग भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अहले बैत को या किसी को भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। ये तौहीद की सबसे इंपॉर्टेंट आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने इल्म को बहुत खोल खोल कर बयान कर दिया। आगे देखते हैं अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, ये मौत असगर है। मौत असगर क्या है? जो छोटी मौत है, जो हमें सोने, नींद करते वक्त आती है, जब हम सोते हैं। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, अल्लाह वही जात है जो तुम्हें फौत करता है बिल्लैली, रात के वक्त, यानी कि छोटी मौत देता है, मौत असगर। वयअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, और वो कौन है कि जो कि वो रात के वक्त तुम्हारी रूह को कब्ज कर देता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो उसको वो जानता है। वो यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, और जो कुछ भी तुम दिन के वक्त करते हो वो उसको जानता है। सुम्मा यबअसुकुम फीही लियुक़दा अजलुम मुसम्मा, अब ये जो दूसरी दफा उठाना है, वापस लौटाना है, वो कौन सा है? वो क़यामत के वक्त दोबारा उठना है। एक तो उठना हमारा रात को सोकर सुबह के वक्त उठना है, दिन के वक्त काम काज करना है। और जो दूसरी दफा, दूसरी बार उठने का हुक्म दिया जा रहा है, बात की जा रही है, अजल मुसम्मा, ये वो वक्त है, मुकर्ररा वक्त है, जो क़यामत के दिन का वक्त है। तुम्मा इलैहि मर्जिउकुम सुम्मा युनब्बिउकुम, फिर तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की तरफ लौट कर जाना है। तुम्मा युनब्बिउकुम, फिर तुमको बतलाएगा, तुम्हें खबर देगा, तुम्हें बताएगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ भी तुम अमल करते रहे उन सब के बारे में तुम्हें खोल खोल कर बयान कर देगा। यानी कि दिन के वक्त रूहें वापस लौट आती हैं, जिंदा कर दिया जाता है रात को सोने के बाद, और फिर रोज क़यामत की बात की जा रही है। ये सिलसिला शब रोज का वफात असगर है, और फिर अगली जो मौत होगी, जो जिसमें इंसान वापस सोकर नहीं उठेगा, क़यामत के दिन उठेगा, वो मौत अकबर है, अकबर। मौत की दो किस्में होगी, मौत असगर और मौत अकबर। और फिर अल्लाह ताला तुम्हें सारे के सारे अमाल की खबरें खोल खोल कर दे देगा, जो कुछ भी तुम अमल करते हो वो बयान कर देगा। अल्लाह ताला रोज़ क़यामत हम सबको
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، تمام کے تمام مسلمین کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین پر اللہ رحم کرے، ہمارے بہن بھائیوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان کر دے اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے۔ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے دلوں کے اندر اس قرآن کو سمو دے اور ہمارے ہر عمل کو قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔